Hello and welcome to my podcast. Today, on this beautiful day, I welcome all of you to join me on this journey. A journey that the father of our nation, our dear Bapu, once took with his friend. And as the famous saying goes, let this journey be more beautiful than the destination. So I encourage you all to sit tight and just enjoy the show. Oh, but don't go just yet. Hold up. Bon voyage. So, dear friends, it happened that Mahatma Gandhi was traveling in a small train uphill to Darjeeling. Darjeeling is a hill station in India, and you have a small train that goes there. It is a narrow gauge train. Now, what happened is that when the train was moving up the hill, somewhere the engine got itself disconnected from the coaches. So the engine went up ahead and the coaches started sliding backward. Just imagine, on a big hilly terrain, coaches are sliding backwards. What would happen? There was a huge panic as people were between life and death. Any moment, the coaches would fall off the hill and one would not even find a trace of a bone. It was the treacherous Himalayan range. So while there was panic all around, Mahatma Gandhi was dictating letters, and he said to his beloved friend Pandit Sudhakar Chaturvedi, Bangalore, take dictation, because he was from Bangalore. We may not be alive. We are in between life and death. The coaches are moving backward with nothing to stop it, and it's gaining speed. Dear Bapu, poised as always, replied, suppose we get saved. We would have wasted all this time. If we die, we die. But if we are saved, we wasted so much time. So come on, Bangalore, take dictation. With trembling hands, Panditji took dictation. Panditji would say, look at this old man. He would not waste a moment of his life. There is another story I would like to share with you. Once, Gandhiji's dhoti, his garment, was torn, and someone said, Bapu, your dhoti is torn. So Gandhiji goes to the bathroom and adjusts his garment a little bit and then says, see now and tell me where it is torn. There is a lot of it left to get torn. So his idea was not to waste resources, not to be a consumerist by nature. And as he had always said, there is enough for everyone's need, but not for everyone's greed. That was the message he used to live by. Gandhiji had such a soft heart, that of a child, innocence of a child. What is needed today is the innocence of Gandhiji, the valor, vigor, commitment, and vision of Martin Luther King Jr. These two things combined together is the answer for the situation we are in today. So I hope you enjoyed my presentation. अहिंसा, सत्य बोलना, कर्तव्यपरायण, निष्ठा, आत्मीयता, एकता और सभी मनुष्यों को एक समान दृष्टि से देखने की ये विचार देखने में तो बड़े साधारण से लगते हैं, पर जो व्यक्ति इन विचारों को अपनाता है और जीता है, वह साधारण व्यक्ति असाधारण हो जाता है। और इन्हीं में से एक हैं हमारे प्यारे बापू
जो कि मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं, और प्यार से हम इन्हें भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते हैं। महात्मा गांधी जी ने हर उस लक्ष्य को फतेह किया जो उन्होंने तय किया। आज मैं वैशाली आप सभी के समक्ष उन्हीं के जीवन से जुड़ा एक प्रसंग प्रस्तुत करना चाहती हूँ। 1893 देश है साउथ अफ्रीका। 23 वर्ष के गांधी जी वकालत के लिए वे साउथ अफ्रीका जाते हैं। रंगभेद तो मानो यहाँ जीवन का एक अभिन्न अंग हो। होटल्स में प्रवेश ना देना, यूरोपियंस के लिए जगह खाली करना, अश्वेत लोगों के लिए मानो ये एक सामान्य नियम था। ट्रेनें As we celebrate the 152nd birth anniversary of Mahatma Gandhi this year, we remember his irreplaceable contributions to India's freedom struggle. This podcast features a snippet from Gandhiji's life. It has been taken from The Story of Gandhi by Rajkumari Shankar. Preparation for England. After passing his high school examination, Mohandas joined the Samaldas College at Bhavnagar. As he did not find the classes interesting, he returned home after the first term. There, a big surprise awaiting him. His eldest brother and family friend suggested that Mohandas should go to England to study and become a barrister. Mohandas was thrilled. Here was a chance for him to see the world. But his mother did not like the idea of his going to England. She did not want her youngest son to stay away from her. There was also the problem of money. Moreover, she feared that Mohandas would lose his caste if he crossed the ocean. The family friend assured her that there would be not much difficulty and everything would be all right. But his mother was still opposed to the idea. I know many reasons why it is dangerous for a Hindu to leave India, she explained to him. You will have to eat meat. They drink wine there, and you will be tempted to drink wine. Then you might fall into bad company, and there are many other temptations which may spoil you. No, mother, Said Mohandas. I am no longer a child. I can look after myself. He pleaded with her to allow him to go, and he took a vow not to eat meat, not to drink, and not to touch a woman. Putli Bai at last gave in and allowed him to go to England. When he left Rajkot for Bombay, he had to leave behind his mother, his wife, and his son, who was only a few months old. On September 4, 1888, Mohandas left Bombay for England. Dressed in Western style, he stood on the deck as the ship slowly steamed out of the harbour. He was sad, but he was also excited. Mohandas never forgot his first morning on board. He wore a black suit, a white shirt, and a stiff collar pinched him. It was quite a job to knot his tie properly. The tight short coat also made him ill at ease. He thought that Indian dress was much more comfortable. Yet a glance in the mirror made him feel proud of himself. He thought he looked very impressive. Mohandas was shy.
He rarely left his cabin. He even ate his food there alone. He was not sure of all those unknown dishes served in the ship. He thought they might contain meat. He did not wish to break his vow to his mother, so he lived mainly on the sweets he had taken with him. In the book of Ecclesiastes, in the Holy Bible, it says, "It is better that you should not vow than that you should vow and not pay." We see that Gandhi ji kept his promise made to his mother. He was faithful in keeping the vow. राष्ट्रपिता, महात्मा, बापू, अहिंसा के पुजारी, न जाने कितने उपाधियों और नामों से गांधी जी को विश्व भर में जाना जाता है। उनका समस्त जीवन अपने आप में प्रेरणा और मार्गदर्शन का ग्रंथ है। उनके कार्य किसी परिचय के मोहताज नहीं। सत्य पथ पर उनका समर्पण, आदर्श जीवन, अहिंसा में अटूट विश्वास उन्हें सदैव विशिष्ट बनाता है। एक बार गांधी जी एक छोटे से गांव में गए तो वहां उनसे मिलने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उत्साह से भरपूर लोगों का जमघट देखते नहीं बनता था। वहां आए लोगों से गांधी जी ने पूछा, इन दिनों आप लोग कौन सा अन्न बो रहे हैं और किस अन्न की कटाई कर रहे हैं? चारों ओर जैसे सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे की ओर देखकर फुसफुसाने लगे। तभी भीड़ में से एक वृद्ध व्यक्ति आगे आया और गर्भध होकर बोला, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, क्या आप इतना भी नहीं जानते कि ज्येष्ठ माह में खेतों में कोई फसल नहीं बोई जाती? इन दिनों हम खाली रहते हैं। गांधी जी ने पूछा, जब फसल बोने और काटने का समय होता है, क्या आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं होता? वृद्ध बोला, तब तो रोटी खाने का भी समय नहीं होता। गांधी जी बोले, तो इस समय तुम बिल्कुल निठल्ले हो और गप्पे हाँक रहे हो। सभी लोग मिलकर अपना समय बर्बाद कर रहे हो। अगर तुम चाहो तो इस समय भी कुछ बो और काट सकते हो। ये सुनकर गांव वाले बोले, कृपया करके आप ही बता दीजिए कि हमको क्या बोना और क्या काटना चाहिए। गांधी जी बहुत गंभीरता पूर्वक बोले, आप लोग कर्म बोइए और आदत काटिए, आदत को बोइए और चरित्र को काटिए, चरित्र को बोइए और भाग्य को काटिए। तभी तुम्हारा जीवन सार्थक हो पाएगा। आपका जीवन अनमोल है। इसका एक एक क्षण कीमती है। इसको जीते हुए आपको अपनी क्षमता को बढ़ाना है, हर एक प्रतिभा को निखारना है, हर एक ऐब को, आलस्य को त्यागना है। हर एक क्षमता को प्रयास के साथ आपको स्वयं को बेहतर से और बेहतरीन बनाना है। महात्मा गांधी एक ऐसा नाम जिसे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में किसी परिचय की जरूरत नहीं है। सत्य और अहिंसा के पुजारी, जिन्होंने बिना शस्त्र उठाए अंग्रेजों को झुका दिया और भारत की आजादी में अहम योगदान दिया। आज हम उनकी एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो शायद ही हमने पहले सुनी हो। कहानी का शीर्षक है श्रम की गरिमा। ये उस समय की बात है जब लाला लाजपत राय यानी हमारे प्यारे लाला जी और महात्मा गांधी यानी हमारे प्यारे बापू एक उत्साही राष्ट्रवादी शिव प्रसाद गुप्ता के घर में रह रहे थे। उनका घर में पहला दिन था। लाला जी नहा धोकर नए वस्त्र पहनकर तैयार थे और अपने गंदे वस्त्र उन्होंने स्नान घर में ही छोड़ दिए थे। अगली सुबह उन्हें उनके सभी वस्त्र धुले और इस्त्री करके रखे हुए मिले।
लाला जी बहुत प्रसन्न हुए। लाला जी उन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे और इसी वजह से बहुत यात्रा करते थे, जिसके कारण उनके कपड़े बहुत गंदे होते थे। उन्होंने बड़े ही विनम्रता पूर्वक गुप्ता जी से पूछा कि क्या वह अपने सभी गंदे वस्त्र धोने के लिए दे सकते हैं। गुप्ता जी ने कहा, अवश्य, आप अपने सभी गंदे वस्त्र धोने के लिए दे सकते हैं। तो लाला जी ने अपने सभी गंदे वस्त्र धुलने के लिए दे दिए। जब उनका वहां से जाने का समय आ गया, तब उन्होंने गुप्ता जी से उस नौकर को मिलने की इच्छा जताई जिन्होंने उनके वस्त्र धुले थे। वो उस नौकर को बख्शीश देना चाहते थे और उसके काम से बहुत प्रसन्न थे। इस पर गुप्ता जी ने कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है लाला जी। लेकिन लाला जी ने पुनः आग्रह किया तो गुप्ता जी उनकी बात मान गए और उस नौकर का पता लगाने अंदर चले गए। गुप्ता जी यह जानकर चकित रह गए। लाला जी के वस्त्र उनके किसी भी नौकर ने नहीं धुले। तभी पास ही खड़े एक नौकर ने बताया कि जो व्यक्ति लाला जी के साथ रह रहे थे, असल में उन्होंने ही सारे वस्त्र धुले और इस्त्री किए थे। यह जानकर गुप्ता जी को बहुत आश्चर्य हुआ और वे फौरन ही लाला जी के पास पहुंचे और बताया कि उनके वस्त्र किसी और ने नहीं बल्कि बापू ने धुले थे। जानकर लाला जी दंग रह गए। फौरन ही बापू के पास पहुंचे और उन्होंने बापू से पूछा कि बापू, आपने मेरे वस्त्र क्यों धुले? तमाम नौकर चाकर होने के बावजूद आपने ये वस्त्र क्यों धुले? बापू मुस्कुराए और उन्होंने बोला, नमस्कार दोस्तों। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। महात्मा गांधी ने इस देश को आजाद कराया था। लोग उन्हें प्यार से बापू भी कहते हैं। तो चलिए, आइए उनके जीवन से एक जुड़ी मजेदार घटना को सुनते हैं। बात उन दिनों की है जब गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे। साबरमती आश्रम के छात्रों को पढ़ाई के अलावा और भी कई काम सौंपे गए थे। अपना निजी काम करने के बाद वे कई तरह के काम करते थे जो व्यावसायिक महत्व के थे, जैसे कपड़े सिलना, चारपाई की रस्सियां बुनना। लड़के इस बात पर दांव लगाते थे कि कौन अपना काम करने में सबसे तेज है। एक बार पार्थ सारथी नाम के एक लड़के को कमीज सिलनी थी और प्रभुदास गांधी को चारपाई बुननी थी। उन दोनों में शर्त थी कि कौन पहले काम खत्म करेगा। तो इस पर प्रभुदास ने कहा कि वह शनिवार तक अपना काम पूरा कर लेगा। ये जो सारी बातें थी, ये गांधी जी ने सुन ली। अब क्या था, शनिवार का दिन आया और गांधी जी को तो सारी बातें याद ही थी। उन्होंने प्रभुदास से पूछा, क्या उसने चारपाई बना ली? प्रभुदास ने कहा कि उसने अभी तो आधा ही काम किया है। गांधी जी ने फिर उससे पूछा, क्या आज वो चारपाई बना पाएगा? प्रभुदास चुप हो गया। तब बापू ने कहा, आज तुम नहीं पढ़ोगे, इसके बजाय तुमने जो चारपाई छोड़ी है उसका आधा हिस्सा अभी बनाओ। शाम को बापू फिर आते हैं और प्रभुदास से चारपाई के बारे में पूछते हैं।
प्रभुदास कहता है कि उसने अभी तक चारपाई नहीं बनाई है। गांधी जी अब कहते हैं, रात के खाने के बाद तुम खेलने के लिए बाहर नहीं जाओगे। जब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम यहाँ पे चारपाई बनाओगे। बेचारा प्रभुदास अब अकेले बैठकर अपना काम कर रहा था, जबकि सारे बच्चे बापू के साथ टहलने निकल गए। सुबह से काम करते करते उसकी उंगलियों में भी दर्द होने लगा था। जहाँ अब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, प्रभुदास अभी भी काम कर रहा था। बापू प्रभुदास के पास दोबारा आते हैं और पूछते हैं, क्या वह काम समाप्त कर चुका है? प्रभुदास ने कहा कि उसके पास बुनने के लिए केवल 5 गज और है। गांधी जी भी उसके साथ वहीं पे खड़े रहे। अब रात के 11 बज चुके थे और काम अभी भी खत्म नहीं हुआ था। प्रभुदास बहुत थक गया और आखिरकार उसकी उंगलियों ने काम करना बंद कर दिया और उसे रोना आ गया। तब बापू प्रभुदास के पास गए और कहा, तुमने एक शर्त रखी थी कि तुम आज अपना काम पूरा कर लोगे, लेकिन तुम नहीं कर पाए। आज की घटना तुम्हें सीख दिलाती रहेगी कि इंसान को वैसा ही कहना चाहिए जैसा वो कर पाए।